Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing pretty well for your upcoming examination, that is CSIR as well as ICMR. So in this video, I will provide a complete detailed lecture about the fluorescence microscopy because this is very much important in cell as well as molecular biology. So we will discuss from the basic to the most important points that is important as per the examination point of view. So if you like my efforts, you can hit the like button and do subscribe my channel for more such videos. So before directly starting the fluorescence microscopy, you should have a background about what are the different kind of microscopic technique right from the scratch to the most advanced level. So firstly, why microscope is required? So the answer is very easy, and you all know that microscopes are instruments that produce an enlarged image. यानी एक टाइनी सेल को अगर हमें देखना है तो उसका हमें enlarged व्यू चाहिए होगा. So for that we need an instrument that is known as the microscope. There are different variants of microscope. So over the past few years, the light microscope or the basic version of the microscope has been modified to offer different approach. Like जो पहले microscope होता था, that only magnifies the image of a fixed tissue. यानी अगर आपने सर्टेन स्लाइड पे एक फिक्स टिश्यू रख दिया, उसे आप ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, दैट माइक्रोस्कोप वॉज कैपेबल एनफ. बट इफ़ यू वांट टू ट्रेस सम डायनामिक इवेंट्स अकरिंग इन अ सेल, यानी कि अगर आपको पता करना है कि कौन सा जो है मूवमेंट कर रहा है प्रोटीन, कौन सा जो सेल ऑर्गेनील है वो इन्वॉल्व है मोटिलिटी में या फिर किसी टाइप के ट्रांसपोर्ट में. सो इफ़ यू वांट टू ट्रेस बेसिकली द डायनामिक्स of the cell, so you need such kind of microscope that is capable enough of enlarging that event also. So for that light microscopy में ही बहुत सारे changes किए गए and therefore light microscopy का ही advanced version जो निकल के आया, that is the fluorescent microscopy. So these advances in living cell imaging have been made possible to a large extent by innovations in the fluorescence microscopy. As per evolution also, we know that simple and basic things arise first on the earth as compared to the complex and the more sophisticated one. Because जैसे जैसे simple and basic चीज़ें आती हैं, उनमें लगता है कि हाँ ये चीज़ ड्रॉबैक है, ये कमी है, ये वाला फंक्शन नहीं परफॉर्म हो पा रहा है. देन उसमें जो भी एग्जिस्टिंग अप्रोच लगाया जाता है कि हाँ ये मॉडिफिकेशन कर देंगे तो हमें ये फंक्शन भी मिलेगा, ये मॉडिफिकेशन कर दिया तो हमें सेकंड फंक्शन भी मिलेगा एंड लाइकवाइज. सो इस तरह से एग्जिस्टिंग चीज़ों में, यानी जो बेसिक सबसे पहले ओरिजिनेट हो चुका है, उसी का ही एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट करके उसका न्यू फॉर्म लेके आ जाता है. सो बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोपी में ये देखा गया कि इट इज़ ओनली केपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग अ फिक्स्ड टिश्यू दैट इज़ नॉट अप टू अ सर्टेन मार्क. यानी ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा फिक्स्ड टिश्यू ही देखना हो सेल के बारे में. If we want to trace the dynamic activity of a cell, we need such kind of microscope. So this is how fluorescence microscopy originated. So some terminology related to the fluorescence microscopy is basically the fluorochromes. So fluorochromes क्या होते हैं? The fluorescence microscope allow viewers to observe the location of a certain compound known as the fluorochromes or fluorophores. Basically, fluorochromes absorbs invisible UV rays, that is the ultraviolet radiation, and releases a portion of the energy in the longer visible wavelength, a phenomenon called fluorescence. So in simple languages, fluorescence microscopy में क्या किया जाता है? The substance or the sample of interest that has to be analyzed or viewed from that microscope is firstly labeled with a fluorescent substance known as a fluorophore. यानी suppose certain kind of tissue है and अगर आपको इसे examine करना है, so firstly you will label this with a suitable fluorescent fluorophore and then illuminate it through the lens with the higher energy source. So basically fluorochromes क्या होते हैं? They absorb invisible UV rays and they radiate back the longer visible wavelength that is viewed by the viewer, and इस phenomenon को ही बोला जाता है fluorescence. So now some more detail. The light source in a fluorescence microscope produces a beam of UV light. So this is a question that can be asked, that what is the source of the light produced in the fluorescence microscopy? So यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है. सो इट इज़ दी UV लाइट दैट ट्रेवल्स थ्रू अ फिल्टर which blocks all the wavelength except that which is capable of exciting the fluorochrome.
यानी ऑलरेडी आपने अपने टिश्यू को फ्लोरोक्रोम से लेबल कर दिया है. सो ओनली दैट लाइट विल बी पास दैट इज कैपेबल इनफ ऑफ एक्साइटिंग दैट फ्लोरोक्रोम. सपोज आपने किसी टिश्यू को अगर लेबल कर दिया है किसी फ्लोरोक्रोम, लेट से एक्स नाम है उस फ्लोरोक्रोम का. सो जो लाइट सोर्स होता है यूवी लाइट, वो क्या करेगा, इट ट्रैवल्स थ्रू अ फिल्टर, और वो फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ उसी वेवलेंथ की लाइट को पास करेगा जिन वेवलेंथ की लाइट से ये जो फ्लोरोक्रोम है आपका, जो जिससे आपने लेबल किया है टिश्यू को, वो एक्साइट हो जाए, यानी ग्राउंड लेवल से अपर मोस्ट लेवल में चला जाए. सो दैट इज नोन एज द एक्साइटेशन. यानी सारी लाइट नहीं पास होंगी, सिंगल वेवलेंथ की लाइट पास होंगी जो कि कैपेबल है, यानी उतनी एनर्जी ऑन वेवलेंथ के पास है, दैट इज responsible for exciting the fluorochrome that has been labeled on the tissue. Now the next part is the beam of the monochromatic light is focused on the specimen containing the fluorochrome. जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का फर्स्ट पार्ट ही होता है द सैम्पल ऑफ इंटरेस्ट इज लेबल्ड विथ अ फ्लोरोसेंट सब्सटेंस नोन एज द फ्लोरोफोर. यानी जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है, मोनोक्रोमैटिक लाइट मीन्स सिंगल वेवलेंथ, यानी फिल्टर ने ऑलरेडी क्या किया, सिंगल वेवलेंथ की लाइट को पास किया जो कि कैपेबल है एक्साइट करने में फ्लोरोक्रोम को. सो बेसिकली वो फोकस होती हैं स्पेसिमेन में. स्पेसिमेन यानी जो सब्सटेंस आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं. नाउ विच बिकम्स एक्साइटेड एंड एमिट लाइट. नाउ उस सब्सटेंस में क्या होगा, वो ग्राउंड लेवल से एक्साइट होकर अपर लेवल में जाएगा. सो दैट विल एमिट लाइट ऑफ अ विजिबल वेवलेंथ. विजिबल वेवलेंथ की लाइट वो रेडिएट बैक करेगा, दैट इज we see as an image form and that is focused by the objective lens into an image, जो मैंने अभी बताया. यानी सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो सबसे पहले आपने जो भी टिश्यू आपको देखना है, जो भी स्पेसिमेन आपको देखना है, यू हैव टू लेबल इट फर्स्ट विद अ फ्लोरोसेंट सब्सटेंस दैट इज नोन एज द फ्लोरोफोर और फ्लोरोक्रोम, एंड आफ्टर दैट यू विल पास अ यूवी लाइट, यानी जो लाइट सोर्स है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट. एंड आफ्टर दैट फिल्टर क्या करेगा, सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को ही पास करेगा जो कि कैपेबल है, यानी उतनी एनर्जी ऑन वेवलेंथ में होनी चाहिए कि वो जो फ्लोरोक्रोम आपने पर्टिकुलर फ्लोरोक्रोम से जो लेबल किया है अपने टिश्यू को या स्पेसिमेन को, वो एक्साइट हो जाए. देन वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा. फिल्टर होने के बाद सिर्फ मोनोक्रोमैटिक लाइट ही पास होगा स्पेसिमेन से. फिर स्पेसिमेन से जब लाइट पास होगा तो क्या होगा, इट विल एक्साइट, यानी जो ग्राउंड लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपर लेवल में जाएंगे. एंड आफ्टर दैट एमिशन फिल्टर के थ्रू क्या होगा, एमिशन फिल्टर क्या करेगा, दैट विल रेडिएट द विजिबल वेवलेंथ दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इमेज. बिकॉज द लाइट सोर्स प्रोड्यूसेस ओनली यूवी light, that is the black object stained with fluorochrome appear brightly colored against a black background providing very high contrast. यानी जनरली जो लाइट सोर्स होता है वो यूवी होता है, यूवी लाइट होता है, देयरफॉर जो इमेज प्रोड्यूस होता है वो डार्क बैकग्राउंड में प्रोड्यूस होता है, और जो इमेज का जो क्वालिटी रहता है हाई कंट्रास्ट रहता है. मैं यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस लगा दूंगी कि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से कैसा इमेज बनता है. सो यू कैन ऑल्सो सी द थंबनेल कि बैकग्राउंड डार्क ब्लैक रहता है एंड जो इमेज बनता है दैट इज़ ऑफ हाई कंट्रास्ट. सो हियर इन दिस इमेज यू कैन सी कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वो ब्लैक कलर का है, एंड जो इमेज बना है दैट इज़ ऑफ वेरी हाई कंट्रास्ट. नाउ हियर कम्स अ पॉइंट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज. नंबर वन इज दैट इज नेचुरली प्रेजेंट. नेचुरली ही प्रेजेंट रहता है क्या चीज़, फ्लोरोक्रोम. यानी ऐसे सब्सटेंस जिनमें ऑलरेडी फ्लोरोफोर प्रेजेंट हो तो उन्हें क्या पड़ेगा, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगा अलग से हमें लेबल करने की, अलग से फ्लोरोफोर एक्ट करने की उसमें. नाउ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें लेबल करना पड़ता है, दे डोंट हैव नेचुरल फ्लोरोफोर. सो द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी इज बेसिकली यूज टू विजुअलाइज दो स्पेसिमेन दैट हैज़ फ्लोरोसेंस, यानी जिनमें फ्लोरोसेंस होता है. फ्लोरोसेंस यानी कि द कैपेबिलिटी टू एमिट लाइट ऑफ वन कलर आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ लाइट ऑफ अनदर कलर, यानी जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें देखने को मिलता है. सो बेसिकली दिस इमेज शोज द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी. यू कैन सी इन दिस फिगर दैट दिस इज द हाई कंट्रास्ट इमेज फॉर्मेशन बाय द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी इन अ डार्क बैकग्राउंड. डार्क बैकग्राउंड क्यों होता है, बिकॉज ओनली यूवी लाइट इज यूज्ड एंड यूवी लाइट इज डार्क इन color. So as I mentioned that some substances have naturally present fluorophore, so you don't need to just go for the labeling process. And if the substance do not contain any fluorophore, यानी उसमें कोई fluorescent substance नहीं present है, so you need to label it first and then you can go for the fluorescence microscopy. So
कुछ सब्सटेंस है जैसे कि क्लोरोफिल है, तो जैसे कि क्लोरोफिल ऑलरेडी क्या है, इट इज़ अ फ्लोरेसेंट कंपाउंड. सो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें नेचुरली प्रेजेंट होता है फ्लोरोफोर, दे आर नोन एज दी autofluorescence substance or autofluorescence. Or the second approach is you can firstly label the substance with a fluorescent dye and then you can go for the fluorescence microscopy. So यहाँ पे दो इमेज आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड राइट साइड में थर्ड इमेज. सो दीज टू इमेज शोज द इमेज ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, यानी साइनोबैक्टीरिया का ये इमेज शो कर रहा है, जिसमें से ये जो ए वाला है वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का है एंड जो बी वाला है वो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से बनाया गया इमेज है. तो ये ब्राइट फील्ड से देखा है तो इसमें क्या है, ये जो इसका बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का है एंड यहाँ पे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से देखें तो इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, वो ब्लैक है और जो इमेज बना है वो बहुत ही हाई कॉन्ट्रास्ट बना है. अब यहाँ पे सेल जो है ये रेड कलर का दिख रहा है. तो रेड क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड अदर पिगमेंट्स इन दी साइनोबैक्टीरिया. नाउ जो आपको सी वाला इमेज दिख रहा है, सी इमेज जो है दैट इज ऑफ फ्लोरेसेंस फोटोमाइक्रोग्राफ ऑफ अ सेल ऑफ ई कोलाई, जिसे ई कोलाई में तो कोई फ्लोरेसेंस होता नहीं है. सो इट इज मेड फ्लोरेसेंट बाय स्टेनिंग इट विद अ फ्लोरोक्रोम नोन एज दी DAPI. अब DAPI क्या है उसके बारे में भी देखेंगे. यानी बेसिकली ये जो इमेज था वो क्या था, वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का इमेज था, यानी साइनोबैक्टीरिया का ही ये इमेज है बट थ्रू दी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी. और ये जो बी वाला है दैट इज फ्रॉम दी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी. रेड कलर क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड अदर पिगमेंट्स. एंड ऑल्सो ये जो सी वाला है वो भी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का इमेज है, लेकिन उसमें ई कोलाई इमेज देखा गया है एंड ई कोलाई को फ्लोरेसेंट बनाने के लिए उसे एक फ्लोरोफोर यानी कि फ्लोरेसेंट डाई से लेबल किया गया है जिसे बोलते हैं DAPI. तो बेसिकली DAPI और DAPI स्टैंड्स फॉर दी 4,6 डाई अमीडिनो टोफिनाइल इंडोल, which is a widely used fluorescent dye for staining so many cell and so many cell organelle. So basically ये जो है वो सेल्स के लिए बहुत ही एक कॉमनली यूज़ किया जाने वाला एक फ्लोरेसेंट डाई है और इट स्टेन्स दी सेल ब्राइट ब्लू कलर का ये डाई करता है एंड इट कॉम्प्लेक्सेस विद दी सेल्स DNA. तो यहाँ से भी मल्टीपल MCQs अराइज हो सकते हैं. सबसे पहले तो आपको अगर ICMR के आप प्रिपरेशन करें या फिर कोई जनरलाइज्ड बायोलॉजी जहाँ पे आता है तो वहाँ पे DAPI का फुल फॉर्म आ सकता है. सो DAPI का फुल फॉर्म होता है ये जो मेंशन है. एंड इसके अलावा ये कौन सा कलर देता है स्टेनिंग के बाद में? सो इट गिव्स द ब्राइट ब्लू कलर एंड इट बेसिकली इंटरैक्ट विद द सेल्स DNA. तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन अराइज हो गए. नाउ DAPI कैन बी यूज टू विजुअलाइज सेल्स इन वेरियस हैबिटाट सच एज सॉइल, वाटर, फूड और इवन इन द क्लिनिकल स्पेसिमेन. And also the fluorescence microscopy using DAPI or related stain is therefore widely used for the clinical diagnostic microbiology. यानी DAPI based image निकाला जाता है in the clinical microbiology. So basically one more important point, fluorescence microscopy can also be used to reveal the location within a cell of a protein which is present in very low concentration. अगर कोई प्रोटीन बहुत ही लो concentration में भी है तो थ्रू दी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी वी कैन ट्रेस दैट प्रोटीन एंड वी कैन विजुअलाइज दैट प्रोटीन ऑल. तो ये एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बात है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के लिए कि कोई भी प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट नहीं है, एकदम ट्रेस लिमिटेड अमाउंट में है. सो दैट कैन ऑल्सो बी ट्रेस्ड और विजुअलाइज्ड बाय दी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी. नाउ क्वेश्चन, इन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी विच वन ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रिमूविंग ऑल द लाइट एक्सेप्ट द ब्लू लाइट? It means except the blue light, which of the following perform the function of removing all the light? यानी ब्लू लाइट के अलावा सारी लाइट को कौन इसमें स्टॉप कर देता है स्पेसिमेन से पास होने से? इज इट एक्साइटर फिल्टर, बैरियर फिल्टर, डाइक्रोइक मिरर और मर्क्यूरी आर्क लैम्प? सो इट इज़ दी एक्साइटर फिल्टर. तो जैसे कि मैंने बताया था कि यूवी लाइट जब स्पेसिमेन से पास होती है सो एक्साइटर फिल्टर क्या करेगा, जो लाइट कैपेबल है यानी जिस वेवलेंथ की लाइट कैपेबल है उस फ्लोरोक्रोम को एक्साइट करने में वही लाइट को वो पास होने देगा, सारी लाइट को वो रोक देगा. सो दैट इज नोन एज द एक्साइटर फिल्टर. यानी एक्साइटर फिल्टर क्या करता है इन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी? दिस एक्साइटर फिल्टर रिमूव्स ऑल द लाइट एक्सेप्ट द ब्लू लाइट. और बैरियर फिल्टर क्या करता है? बैरियर फिल्टर ब्लॉक्स आउट द ब्लू लाइट एंड अलाउज एनी अदर लाइट एमिटेड बाय द फ्लोरेसेंस स्पेसिमेन टू पास थ्रू विच रीचेज आवर आईज. So this diagram depicts the full ray diagram that how the fluorescent microscopy function. So the foremost thing, first part जो मैंने बताया था that is the fluorescent
यानी फ्लोरोसेंट डाई से हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं, फ्लोरोसेंट डाई लेबलिंग। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें कोई ऑटो फ्लोरोसेंस वाला फिनोमिनन नहीं होता है, सो फॉर दैट वी नीड टू फर्स्टली लेबल द सैंपल ऑफ इंटरेस्ट विद अ फ्लोरोसेंट सब्सटेंस नोन एज दी फ्लोरोफोर। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको इल्यूमिनेट किया जाता है लेंस से विथ हायर एनर्जी सोर्स एंड द इल्यूमिनेशन लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द फ्लोरोफोर नाउ अटैच टू द सैंपल। सो बेसिकली वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी जो है, हाउ इट फंक्शन। सो बेसिकली ये जो फंक्शनिंग है वो कंबाइन करता है दो प्रॉपर्टीज़ को, यानी द मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टीज़ को ये कंबाइन करता है किससे, फ्लोरोसेंस से। यानी कोई भी कंपाउंड जो है अगर उसमें कोई फ्लोरोसेंस है, कोई प्रॉपर्टी है जिससे वो फ्लोरोसेंस एमिट करे, सो इन दो प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके वो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी काम करता है। नाउ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी यूजेज अ high intensity light source that excites a fluorescent molecule known as the fluorophore in the sample observed। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपका जो स्पेसिमेन है आपने उसे लेबल कर दिया है विथ अ सुटेबल फ्लोरोफोर, एंड लाइट सोर्स क्या करेगा, लाइट सोर्स जब इस पे पड़ेगा तो क्या होगा, ये एक्साइट होगा, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड लेवल पे हैं वो क्या होंगे, वो एक्साइट होके अपर लेवल पे जाएंगे, एंड जब वो वापस से अपने ओरिजिनल लेवल, जब वो वापस से अपने ग्राउंड लेवल पे आएंगे तब वो क्या करेंगे, लाइट को एमिट करेंगे विजिबल वेवलेंथ में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इमेज। यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंटेशन भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। सो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में एक लाइट सोर्स होता है। सो बेसिकली जो लाइट सोर्स होता है दैट इज जेनॉन और मर्क्यूरी आर्क लैम्प, यानी कि जो लाइट सोर्स होता है दैट लाइट सोर्स इज ऑफ जेनॉन, या फिर ये मर्क्यूरी बेस्ड रहता है लाइट। अब इससे क्या होता है, द लाइट एमिटेड फ्रॉम द मर्क्यूरी आर्क इज 10 to 100 times brighter than the normal incandescent lamp and it provides a light in the wide range of wavelength from ultraviolet to the infrared range। नाउ इसके बाद आता है एक्साइटेशन फिल्टर। सो जो एक्साइटेशन फिल्टर है, द पर्पज ऑफ द एक्साइटेशन फिल्टर इज टू फिल्टर आउट ऑल द वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स एक्सेप्ट फॉर द एक्साइटेशन रेंज ऑफ द फ्लोरोफोर अंडर इंस्पेक्शन। सिंपल भाषा में अभी मैंने क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व करवाया ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि एक्साइटेशन फिल्टर, नाम से ही पता चल रहा है कि वो सिर्फ उन्हीं वेवलेंथ को अलाउ करेगा जो वेवलेंथ इस फ्लोरोफोर को क्या करेगी, एक्साइट करेगी, यानी उसके अलावा ये किसी लाइट को आने नहीं देगा। सो एक्साइटेशन फिल्टर का काम क्या हो गया, इट विल अलाउ ओनली दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स दैट इज कैपेबल इनफ ऑफ एक्साइटिंग द फ्लोरोफोर, जो कि हमारे जो स्पेसिमेन है उसको लेबल किया है जिससे। सो ये हो गया। नाउ इसके अलावा जो आता है डाइक्रोइक मिरर, जिसे बोला जाता है बीम स्प्लिटर। ये बीम स्प्लिटर होता है एंड इसका फंक्शन क्या होता है, द डाइक्रोइक मिरर और बीम स्प्लिटर इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब इसका एंगल देखिए ये कितने डिग्री पे है, ये जो है एंगल ये 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है। नाउ दिस 45 डिग्री एंगल जो है बिटवीन एक्साइटेशन फिल्टर एंड एमिशन फिल्टर। अब ये जो है ये क्या है, एमिशन फिल्टर है, और ये यहाँ पे क्या है, एक्साइटेशन फिल्टर है। तो ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। सो द एंगल इन बिटवीन द एक्साइटेशन फिल्टर एंड द एमिशन फिल्टर इज 45 डिग्री, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। सो द फंक्शन इज टू रिफ्लेक्ट द एक्साइटेशन सिग्नल टूवर्ड्स द फ्लोरोफोर एंड टू ट्रांसमिट द एमिशन सिग्नल टूवर्ड्स द डिटेक्टर। सिंपल भाषा में डाइक्रोइक फिल्टर जो है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है जो एक्साइटेशन सिग्नल है उसको किसकी तरफ लेके जाता है, फ्लोरोफोर की तरफ। यानी यहाँ पे आपका जो सब्सटेंस है या स्पेसिमेन जिसको देखना है वो लेबल किया है आपने एक फ्लोरोफोर से, तो ये जो डाइक्रोइक मिरर है वो क्या करता है, एक्साइटेशन सिग्नल देता है ऑब्जेक्ट को, यानी कि डायरेक्टली फ्लोरोफोर को, एंड ऑल्सो इट ट्रांसमिट द एमिशन सिग्नल टूवर्ड्स द डिटेक्टर। यानी कि जब ये यहाँ से, जैसे कि मैंने बताया कि ग्राउंड लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, जो लाइट पड़ेगा तो एक्साइट होंगे, उसके बाद वो वापस से जब अपने ओरिजिनल लेवल में आएंगे तो कुछ लाइट को एमिट करेंगे, तो वो सिग्नल को भी कौन पहुंचाता है डिटेक्टर तक, डाइक्रोइक मिरर। यानी इसका दो फंक्शन है कि इट रिफ्लेक्ट्स द एक्साइटेशन सिग्नल टू द फ्लोरोफोर और द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो इट ट्रांसमिट द एमिशन सिग्नल टूवर्ड्स द डिटेक्टर। नाउ इसके बाद आता है फंक्शन एमिशन फिल्टर का। सो जो एमिशन फिल्टर है इट इज लोकेटेड विद इन द इमेजिंग पाथ ऑफ द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। आप देखिए जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे ये एमिशन फिल्टर लगा हुआ है। सो
इसका लोकेशन आपको ध्यान रखना है, इट इज़ लोकेटेड विद इन द इमेजिंग पाथ ऑफ अ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। इसका बेसिकली फंक्शन होता है फिल्टर आउट करना। किसको फिल्टर आउट करना? फिल्टर आउट द एंटायर एक्साइटेशन रेंज एंड टू ट्रांसमिट द एमिशन रेंज ऑफ द फ्लोरोफोर अंडर इंस्पेक्शन। यानी जो फ्लोरोफोर का एमिशन रेंज है, सिर्फ उसी लाइट को या उसी रेडिएशंस को सिर्फ फिल्टर आउट करना, बाकी सबको एलिमिनेट कर देना, ये फंक्शन हो गया। नाउ इसके अलावा जो रहता है ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस का पर्पस क्या होता है? टू ट्रांसमिट लाइट टू द सैंपल टू फॉर्म द इमेज। लाइट पासेस डाउन थ्रू द डाइक्रोइक मिरर बिफोर रीचिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी सबसे पहले डाइक्रोइक मिरर से पास होता है, तब जाके फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होता है। इसके अलावा कैमरा लगाया जाता है। अ कैमरा सिस्टम हेल्प्स टू रिकॉर्ड द इमेज ऑफ द स्पेसिमेन with high resolution image. So this is the overview of all the component or the instrumentation of the fluorescence microscopy. I hope each and every aspect मैंने यहाँ पे clear कर दिया है। Still अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं। And thank you so much for watching.